Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the lecture number 15 of the course Data Structures. My name is Dr. Iftikhar Azim Niaz. My dear students, I hope that you are feeling now more confident in programming and you are implementing the topics which I have been discussing with you. And day by day you are getting more knowledge and you must be exercising to get more skill to get over the problem solving. उम्मीद है कि जो लास्ट लेक्चर में भी हमने बातें की होंगी वो आपको बखूबी समझ में आ गई होंगी. तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दी एज पर प्रैक्टिस द समरी ऑफ द लास्ट लेक्चर. लास्ट लेक्चर में वी स्टार्टेड अ न्यू कॉन्सेप्ट इन द डेटा स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड सॉर्टिंग. Sorting is basically a fundamental operation in computer science. It is the task of rearranging data in an order such as या तो ascending में होगा, descending में होगा, or it can be in the lexicographical order. अब डेटा जो है that can be of any type. आपका न्यूमेरिक भी हो सकता है, अल्फ़ाबेटिक भी हो सकता है और अल्फ़ा न्यूमेरिक भी हो सकता है कि जिसमें आपके न्यूमेरिक डेटा भी अल्फ़ाबेट्स भी और स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे एम्परसेंड है, इक्वल टू है, एट द रेट ऑफ है, हाइफन है, अंडरस्कोर है, ये सारे शामिल हो सकते हैं. सॉर्टिंग बेसिकली रेफर्स टू रीअरेंजिंग अ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन देयर की वैल्यूज व्हेन द रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन अ फाइल. और की वैल्यू वो फील्ड होता है जिसमें नॉर्मली डेटा यूनिक होता है. सॉर्टिंग टास्क इट अराइजेस मोर फ्रीक्वेंटली इन द वर्ल्ड ऑफ डाटा मैनिपुलेशन. जहाँ पर भी डाटा मैनिपुलेशन होगी वहाँ पर सॉर्टिंग का ऑपरेशन अक्सर इस्तेमाल होता है. सॉर्टिंग को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि लेट ए बी अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन मेमोरी सच दैट कि एलिमेंट्स आपके A1, A2, A3 सो ऑन अप टिल AN हो सकते हैं. तो सॉर्टिंग रेफर्स टू ऑपरेशंस of rearranging the contents of the list A so that they are increasing in order numerically or lexicographically such that A1 is less than or A2, which is less than A3, which is less than or equal to A4, less than equal to A5, so on, जब तक less than equal to n-1 and less than equal to n तक हो जाए. तो इसमें देखने में आता है कि since A has n elements, there are n factorial ways that contents can appear in A. यानी कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसके फैक्टोरियल भी आपकी वो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो डिफरेंट अरेंजमेंट्स में आ सकते हैं. These way corresponds precisely to the n factorial permutations of 1, 2, 3, 4, 5 up till n. तो accordingly आप ये कह सकते हैं कि each sorting algorithm must take care of these n factorial permutations. So efficient sorting is important for optimizing the use of other algorithms such as searching and the merge algorithms that required sorted list to work correctly. तो sorting हमने कहा था कि it's also useful for canonizing the data and for producing human readable output. More formally, the output must satisfy two conditions. हमने कहा था कि the output is in the non-decreasing order, means कि each element is no smaller than the previous element according to the desired total order, and the output is a permutation, means reordering of the input. फिर हमने reasons भी discuss किए थे last time कि what are the reasons why we do for sorting. From the programming point of view, the sorting task is important for the following reasons. उसमें एक था कि नंबर 1 था कि हाउ टू रीअरेंज अ गिवन सेट ऑफ डेटा. दूसरा था कि विच डेटा स्ट्रक्चर्स आर मोर सूटेबल टू स्टोर डेटा प्रायर टू देयर सॉर्टिंग. हाउ फास्ट कैन द सॉर्टिंग बी अचीव्ड, ये भी एक रीज़न है व्हाई वी सॉर्ट. एंड हाउ कैन सॉर्टिंग बी डन इन अ मेमोरी कंस्ट्रेंड सिचुएशन, एंड हाउ टू सॉर्ट वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा. फिर उसके बाद हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज की बात की थी कि जो रिलेट करती हैं सॉर्टिंग के हवाले. उसमें सबसे पहले हमने कहा था कि जो कॉमन टर्म्स है इंटरनल सॉर्ट और एक्सटर्नल सॉर्ट.
तो इंटरनल सॉर्ट है when a set of data to be sorted is small enough such that the entire sorting can be performed in a computer's internal storage. मेमोरी के कंप्यूटर मेमोरी के अंदर ही जब ये सारे ऑपरेशंस हो तो हम उसको कहते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी इंटरनल सॉर्ट. और एक्सटर्नल सॉर्ट है कि वेयर यू हैव टू सॉर्ट अ लार्ज सेट ऑफ डेटा विच इज स्टोर्ड इन लो स्पीड कंप्यूटर्स एक्सटर्नल मेमोरी सच एज हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD-ROM. Ascending order means an arrangement of data if it is satisfies less than or equal to relation between the two consecutive data. जैसे कि हमने कहा था कि अगर आप न्यूमेरिकल ऑर्डर में देखें तो 1, 2, then 3, then 4, then 5, then 6, then 7, then 8 and then 9. This is ascending order. And descending order means arrangement of data if it is satisfies greater than or equal to रिलेशन बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव. तो वो है, हम अगर इसी को एग्जांपल को हम देखें तो उसमें 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. तो ये आपकी जो ऑर्डरिंग है दिस विल बी डिसेंडिंग ऑर्डर. लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर हमने कहा था कि इफ द डेटा आर इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर और स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स एंड आर अरेंज्ड इन द सेम ऑर्डर एज इन डिक्शनरी. एग्जांपल हमने कहा था कि जैसे एडा, बैट, कैट, मैट, मैक्स, मे एंड मिन. इसके अलावा हमने कोलेटिंग सीक्वेंस की बात की थी. मींस कोलेटिंग सीक्वेंस मींस ऑर्डरिंग फॉर अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट डिटरमिन्स वेदर अ कैरेक्टर इज इन हायर, लोअर और सेम ऑर्डर कंपेयर टू अनदर. एंड फॉर एग्जांपल जिसमें हमने बात की थी कि जो आपके अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं दे आर कंपेयर्ड अकॉर्डिंग टू देयर ASCII कोड्स. उसमें मींस कि अगर आपका ASCII कोड की जैसे हमने शुरू में बात की थी तो ASCII कोड जो है उसमें 1 to 0 जो है वो 48 से 57 तक है. कैपिटल A से स्मॉल a जो है वो 64 से आगे तक जाते हैं. 97 से आपका स्मॉल a शुरू होता है. तो जैसे अगर आपका हमने कहा कि जी कर अमेजॉन है जिसमें A कैपिटल है, एक दूसरा अमेजॉन है जिसमें A स्मॉल है, तो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में Amazon with capital A पहले आएगा, Amazon with small a बाद में आएगा. और इसके अलावा random order means if the data in a list do not follow any ordering mentioned above, means कि ना वो decreasing में है, ना descending में है, ना ascending में है, ना collating sequence में है, ना ही lexicographical order में है, तो फिर हम उसको कहेंगे कि then it is in the random order. For example 8, 6, 5, 9, 3, 1, 4, 7, 2, this is a random order. मे, बैट, एडा, कैट, मैट, मैक्स, मिन, इसको भी हम रैंडम ऑर्डर कहेंगे. स्वैप एक टर्म है. स्वैप बिटवीन टू डेटा स्टोरेजेस इम्प्लाइज द इंटरचेंज ऑफ देयर कंटेंट्स. जिसमें हमने कहा था कि लेट्स सपोज कि अगर दो एलिमेंट्स हैं जैसे AF1 में वैल्यू पड़ी है 11 और AF5 में वैल्यू पड़ी है 99. ये दिस इज द सिचुएशन बिफोर स्वैप. तो जब स्वैप ऑपरेशन कंप्लीट होगा तो आप AF1 में 99 आ जाएगा और AF5 में 11 आ जाएगा. आइटम इज अ डेटा और एलिमेंट इन द लिस्ट टू बी सॉर्टेड. इट मे बी एन इंटीजर, स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, अ रिकॉर्ड. ऑल्सो ऑल्टरनेटिवली हम इसको की भी कहते हैं, डेटा भी कहते हैं या एलिमेंट भी कहते हैं. स्टेबल सॉर्ट एक टर्म है. लिस्ट ऑफ डेटा मे कंटेन 2 or more equal data and if a sorting method maintains the same relative position of their occurrences in the sorted list, then it is called a stable sort. In place sort means suppose a set of data to be sorted is stored in an array. So if a sorting method takes place within the array A only, इसके लिए कोई आप extra data structure या कोई और storage space नहीं use कर सकते, तो हम कहते हैं कि this is an in place order sort and it is a memory efficient sorting method. Then we talk about sorting classifications. उसमें हमने sorting algorithms, they are often classified by computational complexity. Means जिसमें हम worst, average और best behavior देखते हैं of the element comparisons in terms of the size of the list n. And for typical sorting algorithm, good behavior is big O, n log n होता है, and the bad behavior, worst order is O. Big O is in the order of n square है. Ideal behavior for a sort is big O of the order n होता है, but this is not possible in the average case. The comparison-based sorting algorithms which evaluates the elements of the list via an abstract key comparison operation needs at least big O
n log n comparisons for the most inputs. तो computational complexity of swaps जो for in place algorithms की जब हम बात करते हैं तो memory usage and the use of other computational resources, in particular some sorting algorithms, they are called in place algorithms. So strictly an in place sort needs only big O to the power of 1, means on the order of 1 constant memory beyond the items being sorted, and so sometimes log of n additional memory is considered n place. Recursion जो है, some algorithms are either recursive or non-recursive while others may be both, for example merge sort. Stability की जो हमने बात की थी कि stable sorting algorithms maintain the relative order of records with equal keys, that is the values. Whether or not they are a comparison sort examines the data only by comparing two elements with a comparator operator. General method भी हो सकता है कि where insertion, exchange, selection, merging, etc. Exchange sort includes bubble sort and quick sort. Selection sorts include shaker sort and heap sort. Adaptability के हवाले से हमने कहा था classification हो सकती है कि whether or not the pre-sortedness of the input it affects the running time. The algorithm that takes this into account are known to be adaptive. फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक पे बात की थी, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ द की. स्टेबिलिटी ऑफ द की में हमने कहा था कि स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स दे मेंटेन द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ रिकॉर्ड्स विद इक्वल कीज. अ की इज दैट पोर्शन ऑफ द रिकॉर्ड व्हिच इज द बेसिस फॉर द सॉर्ट एंड इट मे और मे नॉट इंक्लूड ऑल ऑफ द रिकॉर्ड. और हमने कहा था कि इफ ऑल कीज आर डिफरेंट देन दिस डिस्टिंक्शन इज नॉट नेसेसरी, बट इफ देयर आर इक्वल कीज है then in a sorting algorithm is stable if whenever there are two records, let's say R and S with the same key, so R appears before S in the original list, then R will always appear before S in the sorted list. तो ये stability है of the key. तो जब आपके when equal elements are indistinguishable, such as with integers or more generally any data where the entire element is the key, then stability is not an issue. और उसके बाद हमने एक पहली सॉर्टिंग टेक्निक हमने डिस्कस की, दैट वाज द बबल सॉर्ट. उसका हमने कॉन्सेप्ट देखा, फिर एल्गोरिथम एंड कोड एंड इम्प्लीमेंटेशन. तो उसका कॉन्सेप्ट जरा देख लेते हैं कि समटाइम्स इनकरेक्टली इट इज रेफर टू एज सिंकिंग सॉर्ट. बेसिकली इट इज अ सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट वर्क्स बाय रिपीटेडली स्टेपिंग थ्रू द लिस्ट टू बी सॉर्टेड. आप उसके अंदर स्टेप थ्रू करते हैं and then you compare each element of the adjacent items and then swapping them if they are in the wrong order. जैसे ही वो adjacent element आप देखते हैं कि wrong order में आप उनको swap कर देते हैं. The pass through the list is repeated until no swaps are needed, which indicates that the list is sorted. The algorithm gets its name from the way कि जो आपके smaller elements हैं वो bubble होके top of the list means start में आ जाते हैं और जो higher वाले हैं वो end पे चले जाते हैं. Because it only uses comparisons to operate on element, तो इसको हम comparison sort भी कहते हैं. Algorithm में हमने कहा था कि the algorithm starts at the beginning of the data set. उसमें हम देखते हैं कि it compares the first two elements and if the first is greater than the second, तो ये क्या करता है, it swaps them. And it continues doing so for each pair of adjacent elements to the end of the data set. ये एक उसमें चला जाता है. इसको हम कहते हैं फर्स्ट पास. तो सेकंड पास में क्या कहता है, इट देन स्टार्ट्स अगेन विद द फर्स्ट टू एलिमेंट्स रिपीटिंग अंटिल नो स्वैप्स हैव अकर्ड ऑन द लास्ट पास. अब इसमें हम ये देखते हैं कि नोट दैट द लार्जेस्ट एंड गेट्स सॉर्टेड फर्स्ट विद स्मॉलर एलिमेंट्स टेकिंग लॉन्गर टू मूव टू देयर करेक्ट पोजीशन. इसमें हमने फिर उसको दूसरे एंगल से भी थोड़ा देखा था कि सपोज द लिस्ट कंटेनिंग नंबर्स a1 to up till a of n is in memory. The bubble sort algorithm हमने देखा था कि step 1 में क्या है कि you compare a1 with a2 and arrange them in the desired order so that a1 is less than a2. Then you compare a2 and a3 and arrange them so that a2 is less than a3. Then you compare a3 and a4 and arrange them so that a3 is less than a4. Continue until you compare an minus 1 with an and arrange them so that an of minus 1 should be less than a of n.
हम ये यहाँ पे देखा था कि in this pass it involves n-1 comparisons. During step 1 the largest element is bubbled up to the nth position, or we can say it sinks to the nth position. फिर step 2 में है we repeat step 2 with one less comparison. That is, now we stop after we compare and possible rearrange a of n-2 and a of n-1. So step 2 जो है it involves n-2 comparisons, and when step 2 is completed a of n-1 will contain the second largest element. Repeat हमने step 3 में भी है we repeat with 2 fewer comparisons. We stop after we compare and possible arrangement of a of n-3 and a of n-2, and step 3 involves n-3 comparisons, and when step 2 is completed तो a of n-2 will contain the third largest element. ये आपका चलता रहेगा until we have the step of n-1 where we compare element a1 with a2 and arrange them so that a1 is less than a2. तो after n-1 steps ये इनको हम देखते हैं the list will be in the ascending order. आप इनको steps कह लें या इनको passes कह लें, तो after n-1 passes इसका जो है वो आपके लिस्ट जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाती है। इसका हमने एल्गोरिथम भी देखा, फिर हमने इसका कोड भी देख लिया था कि वेयर वी हैव एक फंक्शन लिखा था void bubble sort int list int size एंड int ij temp, और हमने लूप लगाया था, दो इसमें नेस्टेड लूप लगती है फॉर a I is equal to 0 I less than size I plus plus, एंड देन उसकी जो नेस्टेड है फॉर j इज इक्वल टू 0 j लेस देन साइज -1 j प्लस प्लस, और हमने ये सेकंड लूप जो है वो परफॉर्म दी एडजस्टेंट कंपैरिजंस. सो इफ लिस्ट ऑफ j इज ग्रेटर देन लिस्ट ऑफ j प्लस 1 तो फिर हम उसमें स्वैप करते हैं कि लिस्ट ऑफ j को हम टेम्प में डालते हैं, लिस्ट ऑफ j प्लस 1 की वैल्यू लिस्ट ऑफ j में डालते हैं और टेम्प की वैल्यू लिस्ट ऑफ j प्लस 1 में डालते हैं. इससे स्वैपिंग हो जाती है एंड और उसके बाद आपकी लूप्स ख़त्म हो जाती हैं एंड दैट्स द एंड ऑफ द फंक्शन. बड़ा सिंपल है और आई होप कि आपको ये बबल सॉर्ट बड़ी आसानी समझ में आ गया होगा एंड यू हैव रन दैट एल्गोरिथम एंड जो कोड मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिया था, यू मस्ट हैव वर्कड इट आउट, यू हैव रन इट एंड यू हैव डिबग्ड इट सो दैट यू कैन सी कि हाउ थिंग्स हैपन. तो आई होप कि लास्ट लेक्चर अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा. अब हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर. आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे दी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दी बबल सॉर्ट, और आज दो हम नए आज सॉर्टिंग एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे. वन इज दी सिलेक्शन सॉर्ट, उसका हम कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे, एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे एंड वी विल सी इट्स कोड एंड इम्प्लीमेंटेशन, एंड देन वी विल आल्सो डिस्कस दी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट. हम इंसर्शन सॉर्ट की भी बात करेंगे जो एक अनदर मेथड है सॉर्टिंग का. वी विल डिस्कस अबाउट इट्स कॉन्सेप्ट एंड इट्स एल्गोरिथम, उसकी कोड और इम्प्लीमेंटेशन की भी हम बात करेंगे, और इन दी एंड हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन सॉर्ट क्या है. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बबल सॉर्ट जो है उसका जो वर्स्ट केस परफॉर्मेंस है वो है o टू द पावर ऑफ n स्क्वायर, क्योंकि उसमें हमने देखा कि दो नेस्टेड लूप्स थी, एक पासेस के लिए और एक एडजेसेंट एलिमेंट्स की कंपैरिजंस के लिए. तो उसकी जो बेस्ट केस परफॉर्मेंस में भी आपको o टू द पावर ऑफ n है, इन द ऑर्डर ऑफ n है, क्योंकि आपको एक दफ़ा पास तो चलाना पड़ेगा. और एवरेज केस परफॉर्मेंस जो है वो भी आपकी जो है o टू द ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है. वर्स्ट केस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑक्सिलरी जो है वो कांस्टेंट है o in the order of 1, where n is the number of elements being sorted. Average and worst case performance इसकी big O on the order of n square है, so it is rarely used to sort large unordered data sets. ये small के लिए तो इसकी performance अच्छी है, मगर large के लिए इसको चूंकि इसकी n square है इसलिए नहीं यूज़ कर. मीन्स के सपोज कि अगर आपके 30,000 एलिमेंट्स का अगर आपने सॉर्ट करना है तो यू कैन वेल इमेजिन कि इसकी परफॉर्मेंस क्या जाएगी. इट कैन बी यूज्ड टू सॉर्ट अ स्मॉल नंबर ऑफ आइटम्स वेयर इट्स सिम्प्टोटिक इनएफिशिएंसी इज नॉट अ हाई पेनल्टी. इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एफिशिएंटली ऑन अ लिस्ट ऑफ एनी लेंथ दैट इज नियरली सॉर्टेड. मीन्स कि आपके जो एलिमेंट्स है वो सिग्निफिकेंटली आउट ऑफ प्लेस नहीं है.
फॉर एग्जाम्पल जैसे इफ एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर आउट ऑफ प्लेस बाय ओनली वन पोजीशन, जैसे अगर हम ये एग्जांपल्स में हम देखें कि 0 1 2 3, तो इसमें सिर्फ 5 और 4 इंटरचेंज ही करना है, बाकी तो आपके ऑलरेडी नियरली ऑर्डर्ड हैं। और अगर हम दूसरा भी देखें तो 0 1 2 3 4 5 6, ये सिर्फ जो है वो 5 के सेट्स को हमने आपस में किया हुआ है। तो बबल सॉर्ट एक्सचेंज विल गेट देम इन ऑर्डर ऑन द फर्स्ट पास and the second pass will find all elements in order, so the sorts will take only 2n time. The only significant advantage that bubble sort has over most other implementations, even quicksort, but not over the insertion sort, is that the ability to detect that the list is sorted is efficiently built into the algorithm. The performance of bubble sort over an already sorted list means best case is O to the order of n hai. By contrast, most other algorithms, even those with better average case complexity, they perform their entire sorting process on the set and thus are more complex. However, not only does insertion sort have this mechanism too, but it will also perform better on a list that is substantially sorted. Having means a small number of inversions. तो ये तो थी complexity. I hope कि अब आपको bubble sort की क्लियर हो गई होगी. Today हम दूसरी भी एक उसको देखते हैं. एक तो selection sort, इसको specifically हम कहते हैं कि it is an in place comparison sort है, क्योंकि में extra memory use नहीं करनी पड़ती. It is very much noted for its simplicity. Simple है बहुत. It has performance advantages over most complicated algorithms in certain situations, particularly where your auxiliary memory is limited. अब ये selection sort basically काम किस तरह से करती है कि ये आपके जो है सबसे पहले पास में क्या करती है कि finds the minimum value, means कि वो उसका position find कर लेंगे और by the end of the first pass उसको मालूम हो जाता है कि सबसे minimum value कहाँ पर पड़ी है, and it swaps it with the value in the first position. फिर सेकंड पास में ये सेकंड एलिमेंट से शुरू करती है अप टिल एंड और वहाँ पे फिर सबसे मिनिमम एलिमेंट को लेगी और सेकंड पास में ये उसके बाद जो भी होगा उसको स्वैप करेगी, तो सेकंड पोजीशन आपकी सॉर्टेड हो जाएगी. तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपका एक सॉर्टेड एरे बनना शुरू हो जाएगा एंड इट विल रिपीट दीज स्टेप्स फॉर द रिमाइंडर ऑफ द लिस्ट. तो हम इसमें कह सकते हैं कि इट डज नॉट मोर देन n swaps and thus is useful where swapping is very expensive. तो जो नंबर ऑफ स्वाप्स कम होते हैं इसमें n स्वाप से n से ज़्यादा स्वाप्स नहीं हो सकते, क्योंकि n पासेस में n स्वाप्स ही होंगे. तो इसलिए उसमें जो है जहाँ पर अगर आपकी स्वैपिंग ऑपरेशन जो है वो एक्सपेंसिव नहीं है, उन सिचुएशंस में सिलेक्शन सॉर्ट इज द मोस्ट सूटेबल चॉइस. देखते हम द पिक्चर शोज एन एरे ऑफ 6 इंटीजर्स एंड वी वांट टू सॉर्ट देम फ्रॉम असेंडिंग ऑर्डर में कि स्मॉलेस्ट वाला जो है वो यहाँ पर आ जाए, उससे वाला यहाँ पर आ जाए, ये वाला इधर चला जाए, ये वाला 4th पोजीशन पर आ जाए, ये वाला 5th पोजीशन पर आ जाए और ये वाला 6th पोजीशन पर आ जाए. एक्चुअली इट शुड बी द सॉर्टेड ऑर्डर. तो हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है. इट विल स्टार्ट बाय फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट एंट्री. वो कंपैरिजन कर करके यहाँ पर पहुँचेगी तो ये इसको ये स्टार्टेड मिल जाएगा. पहले पास में वो लोकेट करेगी कि दिस विल बी द स्मॉलेस्ट एंट्री. तो उसके बाद ये क्या करेगी कि स्टार्ट बाय स्मॉलिंग एंड स्वैप द स्मॉलेस्ट एंट्री विद द फर्स्ट एंट्री की इसको और इसको वो आपस में स्वैप कर देगी. सिचुएशन ये हो जाएगी. अगेन स्टार्ट बाय फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट बिटवीन द रेस्ट. इट विल स्वैप द स्मॉलेस्ट एंट्री विद द फर्स्ट एंट्री. स्वैप हो गया. फिर क्या करेगा, अब आप ये देखें तो आपका यहाँ से ये आपकी सॉर्टेड साइड बन गई एरे की. पार्ट ऑफ द एरे इज नाउ सॉर्टेड एंड पार्ट ऑफ द एरे इज अनसॉर्टेड. जो अनसॉर्टेड एरे है वो फिर उसको शुरू करेगी. इट विल फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो ये है और उसके बाद इट विल स्वैप देम इन द फर्स्ट अनसॉर्टेड फ्रंट ऑफ अनसॉर्टेड के फ्रंट पे ले आएगी और आपका सॉर्टेड साइड चेंज हो जाएगी और बाकी ये अनसॉर्टेड रहेगा. तो वी हैव इंक्रीज द साइज ऑफ द सॉर्टेड साइड
बाय वन एलिमेंट। अच्छा, उसके बाद देखिए कि अब आपका सॉर्टेड साइड बढ़ना शुरू हो गई और अनसॉर्टेड साइड आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। फिर वो देखेगी कि अनसॉर्टेड में से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, उसने ये फाइंड किया। उसके बाद वो स्वैप करेगी विद द फ्रंट और आपका सॉर्टेड साइड अब आपकी बड़ी हो जाएगी और इसी तरह ये प्रोसेस चलेगा। उसके बाद आपका सॉर्टेड साइड, द प्रोसेस कीप एडिंग वन नंबर टू द सॉर्टेड साइड एंड द सॉर्टेड साइड हैज द स्मॉलेस्ट नंबर अरेंज फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज। फिर आप ये देखिए कि दोनों की होगी तो यहाँ पर आ जाएगा। We can stop when the unsorted side had just one number, since that number must be the largest number, and the array is now started. तो हमने बेसिकली इसमें ये देखा कि we repeatedly selected the smallest element and moved this element to the front of the unsorted side, or in the end we get the sorted array. अगर हम इसका एल्गोरिथम देखें तो सूडो कोड में हम ये कह सकते हैं कि इनपुट क्या होगी कि एन एरे एंड ए आप उसका नाम रख लें, वो जिसमें 1 to n ऑफ n एलिमेंट्स है, और आउटपुट क्या होगी कि ए 1 to n सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपकी लूप चलेगी, पहली जो आउटर लूप है आप ये कह लें कि वो आपकी होगी फॉर आई 1 to n-1, क्योंकि आपको कंपैरिजन नेक्स्ट वाले से करना है इसलिए n-1 तक चलेगी। आप क्या करेंगे कि आप एज्यूम करेंगे कि जो ith पोजीशन है, मींस पहली दफ़ा में ये फर्स्ट होगा, तो दैट इज़ द मिनिमम। और अब फिर नेक्स्ट लूप जो कंपैरिजन जो हमने वो निकालना है, तो उसके लिए हम i से लेके i+1 to n तक चलाएंगे, और उस लूप में हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि क्या a ऑफ j जो है वो इज लेस देन a ऑफ min, तो उसमें क्या होगा कि j विल बी, इसको है तो वो मिन में चला जाएगा, एंड हो जाएगा। और उसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर मिन नॉट इक्वल टू i है, इट मीन्स कि स्वैप करना है, देन इंटरचेंज ai एंड a min। अगर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन को भी देखें तो बआसानी सी लैंग्वेज में आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि इंट a साइज, वे साइज इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और वो हम कह सकते हैं कि लेट्स सपोज कि ये 10 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने कुछ टेम्परेरी वेरिएबल्स ले लिए i, j, min एंड temp। फॉर i इक्वल 0, i लेस देन साइज -1, i प्लस प्लस, i इज असाइंड टू min। फाइंड द मिनिमम नंबर इन द एरे, तो i फॉर j इक्वल्स i+1, j इज लेस देन साइज, j प्लस प्लस। इफ a ऑफ j इज लेस देन a ऑफ min, तो क्या होगा, j विल बी, आप सिर्फ सब्सक्रिप्ट उसका असाइन कर देंगे। व्हेन लूप विल बी टर्मिनेटेड, तो min के अंदर इंडेक्स पड़ा होगा उसका कि जो आपका स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। उसके बाद सिंपली आपने स्वैप करना है कि a ऑफ i और a ऑफ min के वैल्यूज़ को आपस में हम स्वैप कर देंगे, एंड बाय द टाइम दिस फॉर लूप विल फिनिश, तो ये हम देखेंगे कि आपका एरे ऑलरेडी सॉर्टेड हो गया। अब आप इसमें देखें कि स्वैपिंग इन बबल सॉर्ट में विद इन दिस सेकंड फॉर लूप हम स्वैपिंग कर रहे थे, और इसमें जो स्वैपिंग है वो हम उस इनर लूप से बाहर कर रहे हैं, इसलिए एट मोस्ट इसमें n स्वैपिंग्स होंगी, जबकि बबल उसमें केस में हमने देखा था कि मैक्सिमम जो है वो आपकी वो n² हो सकती हैं। एक और उसका हम वो भी हम देखें कि void selection sort int list i int size int ij temp min index for i is equal to 0, i less than size -1, i plus plus। min index is given the value of i, for j i+1, j less than size, j plus plus। if list of j is less than list of min index, then j will be assigned to min index, will determine the minimum। से ये लूप आपकी परफॉर्म करेगी एडजेसेंट कंपैरिजन, और ये आपका कंट्रोल करेगी पासिस थ्रू द लिस्ट। और जब आप लिस्ट ख़त्म होगी तो वहाँ पर आप स्वैप आप परफॉर्म कर सकते हैं इन फॉर द आउटर लूप में कि जी लिस्ट ऑफ जे की जो वैल्यू है बेसिकली वो इसमें चली जाए और उसकी इसमें आ जाए और टेम्प में चली जाए, एंड ऑफ द आउटर लूप। तो implement selection sort using pointers, you will swap two elements। swap function must receive address, जिसको हम AND operator से करेंगे। elements have call by value default using pointers and the static operator। swap can switch array elements।
Pseudo code क्या है? You have to initialize the array, print data in original order, call function selection sort, print sorted array, define selection sort and swap. वही जो प्रोग्राम हमने कल देखा तो उसको हमने ज़रा थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया सिलेक्शन सॉर्ट के लिए कि सॉरी ये यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, इट शुड बी सिलेक्शन सॉर्ट। तो यहाँ पर इंट मेन आ जाएगा, ये उसमें वैल्यूज़ है, प्रिंट एफ आप उसको डेटा कर रहे हैं, फॉर लूप के जरिए हमने जो उसकी इनिशियलाइजेशन की है वो हमने उसके अंदर प्रिंट कर दी है। विल कॉल द सिलेक्शन सॉर्ट विच इज सॉर्ट द एरे। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे प्रिंट द एरे एंड देन इसमें अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर हम सिलेक्शन सॉर्ट गेट्स पास द एड्रेस ऑफ द एरे एलिमेंट पॉइंटर के जरिए एंड द नेम ऑफ द एरे इज अ पॉइंटर, चूँकि इसलिए हमें वहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिलेक्शन सॉर्ट का उसमें वो देख रहे हैं कि आई और जे वो ये हमने कर दिया है और यहाँ पर हम बेसिकली जो है वो स्वैप के लिए आई और मिन इंडेक्स को पास कर रहे हैं। आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज -1, आई प्लस प्लस मिन इंडेक्स आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 1 इंटू जे ऑफ लेस देन साइज -1 से भी आप चलाएंगे तो ये ठीक चल जाएगी। तो ए एरे ऑफ जे इज लेस देन एरे ऑफ मिन इंडेक्स, जे टू मिन इंडेक्स स्वैप करेंगे एंड यू विल गेट दी वैल्यू। और ये डाटा आपका ओरिजिनल ऑर्डर में है एंड नाउ द डाटा यहाँ पर जब डिस्प्ले होगा और ये इट इज विल बी इन दी सॉर्टेड ऑर्डर। अगर हम उसको स्टेप 2 थोड़ा सा देखना चाहें कि वी स्टार्ट विद एन ओरिजिनल लिस्ट आपकी ये है और ये अनसॉर्टेड है। वी सर्च दिस लिस्ट फॉर द स्मॉलेस्ट एलिमेंट और वो हमने देखा कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट 8 आया है and we exchange this smallest element with the first element जो कि 23 है and move the conceptual wall। ये conceptual wall हम move कर देंगे। तो after pass 1 आप ये देखेंगे तो 8 यहाँ पर आ गया और 23 इसकी जगह पर आ गया। अब हम ये आप after 1 pass ये हो गया। अब आपने यहाँ से दोबारा देखा तो 23 is the मिनिमम वैल्यू जो कि इस पोजीशन पर है जिसको यहाँ पर आना है। तो आफ्टर सेकंड पास क्या होगा कि 23 यहाँ पर आ जाएगा और 78 इसकी पोजीशन पे चला जाएगा। और फिर हम जब देखेंगे तो फिर हम आप जब इसको देखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 32 जो है दैट इज़ द मिनिमम, वो इस पोजीशन पर है आफ्टर पास 2। तो अब फिर अब जो है वो हम इसको क्या करेंगे कि इसको हम स्वैप कर देंगे तो 32 यहाँ पर आ जाएगा, 45 उसकी जगह चला गया आफ्टर पास 3। दिस विल बी द सिचुएशन। फिर हम इसको फोर्थ पास में जब देखेंगे तो ये आपका मिनिमम एलिमेंट है। अब जब आप इसको स्वैप करेंगे तो ये पोजीशन हो जाएगी, दिस विल बी आफ्टर पास 4। और पास 5 में चूँकि यही अनसॉर्टेड रह गए हैं, आप इनको जब करेंगे तो ये स्वैप हो जाएंगे। तो आफ्टर पास 5 जो है आप देखेंगे कि योर डेटा विल बी इन दी सॉर्टेड ऑर्डर। एक हम और भी ले सकते हैं टू सॉर्ट एन एरे विद के एलिमेंट्स। सॉरी इट्स नॉट बॉदर्ड, द सिलेक्शन सॉर्ट रिक्वायर्स k-1 पासेस। तो अगर आपका ये ओरिजिनल है तो ये देखें 15 इज द मिनिमम अमंग देम। तो 15 जो है वो फर्स्ट एलिमेंट पर आ जाएगा और इसकी बजाय 40 यहाँ पर चला जाएगा। सेकंड पास में हम देखेंगे कि अब इसमें मिनिमम हम अगर नोट करें तो 25 है। तो 25 जो है वो इस लोकेशन पे चला जाएगा और 82 यहाँ पर आ जाएगा। ये सॉर्टेड होना शुरू हो गया। उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे तो इसमें 33 आया और 33 जो है वो मिनिमम था, बाकी उससे बड़े हैं। तो अब 33 इस पोजीशन पर आ जाएगा और 33 की पोजीशन पर चला जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगी आफ्टर पास 3। दिस विल बी द सिचुएशन। फिर आप देखेंगे कि इस रिमेनिंग में ये सबसे पहले जो 40 आया दिस इज़ द मिनिमम। ये वाला 40 तो मिनिमम तो वो है, तो इसको ये 40 उधर चला जाएगा और ये 98 इस 40 की जगह आ जाएगा। और नेक्स्ट पास में हम ये देखेंगे कि इसको इसमें सबसे मिनिमम कौन सा, ये 40 है तो ये अपनी उस जगह पे चला जाएगा और वहाँ पे जो 82 था वो 40 की जगह पर आ गया। और ये पास 5 के बाद फिर आप ये देखेंगे कि आप जो 54 है वो अपनी ही पोजीशन पर रहेगा। नेक्स्ट पास में जो है वो आप देखेंगे कि 82 उधर चला जाएगा, 98 इधर आएगा और k-1 पासेस भी या n-1 पासेस में हम ये देख सकते हैं कि आवर एरे विल बी इन द सॉर्टेड ऑर्डर।
अगर हम इसका स्टेप थ्रू भी देखें तो ये इसमें 0 सबसे ज़्यादा, फिर ये 1 उधर चला गया, ये 2 था, फिर ये 3 इधर आ गया, ये 4, 5, ये 6, अब उसके बाद 7, ये 8, ये स्वैपिंग। और ये आप ये देखें कि जो लास्ट टाइम मैंने आपको एनिमेशन दिखाई थी तो उसमें उल्टा था कि वो पहले वहाँ से शुरू होता था और फिर, और इस केस में जो है वो आपकी सिलेक्शन सॉर्ट में यहाँ से आना शुरू होता है और बाय द एंड वो यहाँ तक जब पहुँचता है तो एरे इज़ इन दी सॉर्टेड ऑर्डर। ये एनिमेशन थोड़ी सी ज़रा तेज़ चल रही है, बट आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट वो स्टेप थ्रू के ज़रिए पूरा समझ में आ रहा है कि हाउ इट इज़ मिनिमम एंड एक्सचेंजिंग। ये 0 को सबसे पहले इंडिकेट हुआ, ये उसको मिनिमम को इंडिकेट करता जाएगा। जब बाय द एंड ऑफ द पाथ जैसे मिनिमम वो रेड में होगा, और ये उसके बाद येलो आपका सॉर्टेड ऑर्डर में आ रहा है, दूसरा आपका अनसॉर्टेड में है। तो अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर के हवाले से, अगर ये तो हम असेंडिंग में देख रहे थे, अगर सिलेक्शन सॉर्ट आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में हो तो उसमें बेसिकली आप मैक्सिमम फाइंड करेंगे और एंड पे जाके आप उसको स्वैप कर देंगे। तो आप ये देखें कि आपकी जो है वो शुरू में स्वैपिंग जो है वो कम होती जाएगी, यहाँ पर आपकी स्वैपिंग कम होगी, यहाँ पर शायद स्वैपिंग ज़्यादा हो, और बाय द एंड जब आप पहुँचेंगे तो आपका एक आध स्वैपिंग के साथ जो है वो सिलेक्शन सॉर्ट कंप्लीट हो जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं दी कम्प्लेक्सिटी ऑफ दी सिलेक्शन सॉर्ट। सबसे पहली बात यह है कि ये भी इन प्लेस कंपैरिजन सॉर्ट है और इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो n स्क्वायर आती है, मेकिंग इट इनएफिशिएंट ऑन लार्ज लिस्ट बोल सॉर्ट की तरह, एंड इट इज जनरली परफॉर्म्स वर्स देन दी सिमिलर इंसर्शन सॉर्ट, जो कि अभी हम देखेंगे। Selection sort is not difficult to analyze compared to the other sorting algorithms since none of the loops depend on the data in the array। आप ये देखें कि इसमें कोई भी ऐसी लूप नहीं है कि जो डेटा पे डिपेंड कर रही है, हम तो सिर्फ सबस्क्रिप्ट फाइंड कर रहे हैं दोनों में। तो since the lowest element requires scanning all n elements, this takes n-1 comparisons and then swapping it into the first position. तो finding the next lowest element requires scanning the remaining n-, elements and so on। तो बेसिकली अगर आप ये देखेंगे तो ये n-1 प्लस सेकेंड पास में n-2 प्लस so on प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू n-1 ओवर 2। तो ये बेसिकली अगर आप ये देखेंगे तो n स्क्वायर माइनस n ओवर 2, तो उसको हमने देखा हुआ कि ये बिग O में n स्क्वायर कंपेरिजन के बराबर होगा। तो each of these scans requires one swap for n-1 elements. The final element is already in place. तो इसमें अगर आप ये देखेंगे तो इसकी जो worst case performance, best case performance and the average case performance दोनों तमाम जो हैं वो बिग O में जो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है। और अगर आप इसकी वर्स्ट केस की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें फॉर द टोटल, अगर आप देखेंगे तो O टू द ऑर्डर ऑफ n है, एंड वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑक्सिलरी के केस में बिग O जो है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 है, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बीइंग सॉर्टेड। तो अब हम दूसरी इंसर्शन सॉर्ट को भी आज डिस्कस करेंगे। Insertion sort is not as slow as bubble sort and it is very easy to understand. अब insertion sort basically क्या करती है कि it keeps making the left side of the array sorted until the whole array becomes sorted. और रियल लाइफ एग्जांपल में तो मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से दे सकता हूँ कि insertion sort works the same way as arranging your hand when you are playing cards. ताश जब आप खेलते हैं तो उसमें जो आप अरेंजमेंट करते हैं बेसिकली इंसर्शन सॉर्ट होती है कि आप को एक या दो पत्ते लेते हैं, तो जो अनसॉर्टेड जो ताश के पत्ते होते हैं वो आपके पास डेक में पड़े होते हैं, आप डेक में से एक कार्ड उठाते हैं और वो देखते हैं कि जहाँ उसकी अप्रोप्रिएट पोजीशन है वहाँ पर उसको इंसर्ट कर देते हैं। फिर आप दूसरा अनसॉर्टेड में से लेते हैं और उसको देखते हैं कि कहाँ पे इंसर्ट करना है, उसको वहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। तो इंसर्शन सॉर्ट वर्क्स द सेम वे एज अरेंजिंग योर हैंड, मीन्स जो ताश के आपको पत्ते दिए जाते हैं व्हेन प्लेइंग द कार्ड्स। टू सॉर्ट द कार्ड्स इन योर हैंड यू एक्सट्रैक्ट अ कार्ड फ्रॉम द अनसॉर्टेड डेक, you shift the remaining card and then insert the extracted card
in the right place within your hand. अब आपको बेसिकली ये है कि ये आपके अनसॉर्टेड वो पड़े हुए होते हैं. अरेंजिंग योर हेड. अब 7 आपने फर्स्ट कार्ड उठाया वो 7 था, 7 ऑफ डायमंड. आपने सेकंड कार्ड उठाया वो आपको मिला 5 ऑफ डायमंड. तो आप उसको 5 को 7 से पहले प्लेस करते हैं. फिर आपने कार्ड उठाया वो 5 7 था. अब आपको 6 उठाया तो आप उसको 6 को 5 और 7 के दरमियान में प्लेस करते हैं. फिर आप क्या करते हैं कि जब आपने के उठाया तो वो के तो इस पे यहाँ पर रख देंगे. फिर आपने नेक्स्ट कार्ड उठाया वो 8 आया तो 8 आप जो है वो 5 से 7 और के दरमियान में इंसर्ट कर देते हैं. और इस तरह आप देखेंगे आपका ये जो है ये आपका अनसॉर्टेड है और ये आपका सॉर्टेड जो है वो एरे रहता है. तो अनसॉर्टेड को हमने बेसिकली शेड किया हुआ है. तो लुक एट द सेकंड आइटम विच इज 5. तो अब वी कंपेयर 5 to 7. क्योंकि 5 स्मॉलर है सो वी मूव 5 to a temporary location leaving an empty slot at the position 2. अब हम क्या करेंगे कि मूव 7 into the empty position leaving position 1 open. और फिर हम क्या करेंगे कि मूव 5 जो यहाँ पे टेम्प में पड़ा है 5 को उठा के हम उसे एम्प्टी लोकेशन पर ले जाएंगे. अब आपका ये सॉर्टेड है. इसी तरह हम जब नेक्स्ट को खोलेंगे तो नेक्स्ट में खोलने के बाद हम उसे देखेंगे कि उसकी प्लेस कहाँ बनती है. तो उसको वो अगर उनसे बड़ा है तो उसको हम टेम्परेरी में ले जाएंगे, यहाँ पे मूवमेंट करेंगे. अब देखें नेक्स्ट आपने कार्ड खोला वो जो 6 निकला. तो कंपेयर फर्स्ट 5 is larger than 6. So compare next. तो 7 is तो 6 smaller है. So move 6 to temp, leaving an empty slot. Move 7 into the empty slot. वो हमने यहाँ पर देखा. Leaving position 2 जो है वो आपकी ओपन हो गई. और अब आपने क्या करना है कि जो 6 है उसको यहाँ पर ला करना है. तो लुक एट द नेक्स्ट आइटम जो k है. तो कंपेयर टू फर्स्ट k इज लार्जर सो लीव 5 वेयर इट इज. फिर कंपेयर टू 6 तो लीव 6 क्योंकि आपका k जो है वो लार्जर है. फिर आप नेक्स्ट टू 7 को करेंगे k स्टिल लार्जर है तो जो आपका k अब यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा. और फिर नेक्स्ट आपने देखा वो आपका 8 है. उसी तरह आपने देखा कि पहले 8 को 5 से कंपेयर किया वो अपनी जगह पर रहेगा क्योंकि 8 लार्जर है. फिर आपने 8 को 6 के साथ कंपेयर किया तो भी वो अपनी जगह पर रहेगा क्योंकि 8 इज़ लार्जर. फिर आपने 8 को 7 के साथ कंपेयर किया तो वो भी स्टिल 8 अपनी जगह पर ही रहेगा. फिर आपने इसको 8 को किया कंपेयर k से तो वो k से अब ये स्मॉलर हो गया तो अब आप इसको यहाँ पर ले आएंगे. एम्प्टी स्लॉट हो जाएगी. k को आप मूव करेंगे ये नंबर 2 पे एम्प्टी स्लॉट मिल जाएगी. और फिर आप 8 को वापस अपनी जगह पर ले आएंगे, इंसर्ट कर देंगे. तो यू सी कि नाउ योर हैंड इज इन दी सॉर्टेड ऑर्डर. तो मेरा ख्याल है कि अब आपको जो कॉन्सेप्ट है इंसर्शन सॉर्ट का वो बखूबी समझ में आ गया होगा. तो इसमें जो इंसर्शन सॉर्ट में जो अगर आप ये देखें तो वो इंसर्शन के साथ साथ वो इस तरह चलता है कि बाय दी एंड जो है वो यहाँ तक जब आप पहुँचते हैं कंपैरिजन और इस तरह करते कराते इंसर्शन तो यहाँ पर आपकी वो सॉर्टिंग हो चुकी होती है. हम इसका फिर वही एक डेमो ज़रा इस हवाले से भी आपको व्यू दी एरे हैविंग 2 साइड्स अ सॉर्टेड साइड एंड एन अनसॉर्टेड. अभी तो आपकी अनसॉर्टेड साइड है ही नहीं है फिलहाल तो आपको वो अनसॉर्टेड ही है सारा. तो द सॉर्टेड साइड स्टार्ट्स विद जस्ट द फर्स्ट एलिमेंट विच इज़ नॉट नेसेसरीली द स्मॉलेस्ट वन. जरूरी नहीं कि वो स्मॉलेस्ट ही हो. हम एज्यूम करते हैं कि वो सॉर्टेड साइड है. The sorted side grows by taking the front element from the unsorted side. हम इसको लेते हैं and inserting it in the place that keeps the sorted side arranged from small to large. तो चूंकि उसने पहले पोजीशन पर आना तो उसको हम पहले पोजीशन पर ले आएंगे. In this example, the new element goes in front of the element and that was already in the sorted side. अब आप ये एलिमेंट लेंगे और इसको चेक करेंगे और इसको इस जगह पे यहाँ पर इसके बाद आना है, उसके बाद इंसर्ट करेंगे. अब इसको देखना है ये अनसॉर्टेड साइड है. समटाइम वी आर लकी एंड द न्यू इंसर्टेड आइटम डजंट नीड टू मूव एट ऑल. तो हम फिर अब सॉर्टेड हो जाएगा.
एंड समटाइम वी आर लकी ट्वाइस इन अ रो, ये भी हो सकता है समटाइम्स। अब ये जो है कॉपी द न्यू एलिमेंट इनटू अ सेपरेट लोकेशन, टेम्प पे रखेंगे और अब हम शिफ्ट द एलिमेंट्स इन द सॉर्टेड साइड क्रिएटिंग एन ओपन स्पेस फॉर द न्यू एलिमेंट। हमने इसको इधर मूव किया, वो हम शिफ्टिंग करते रहेंगे, कब तक? जब तक उसकी डिजायर्ड पोजीशन ना मिल जाए, until you reach the location for the new element। अब हम क्या करेंगे कि now we'll copy the new element back into the array at the correct location। तो अब देखें ये आपकी sorted side मुकम्मल हो गई, ये अभी आपकी unsorted side मौजूद है। The last element must also be inserted, start by copying it। How many shifts will occur before copy this element back into the array? तो बेसिकली वो देखें 4 शिफ्ट अकर होंगी और उसके बाद ये प्लेस खाली हो जाएगी, 4 आइटम्स, एंड देन द एलिमेंट इज कॉपीड बैक इनटू द अरे। तो आफ्टर दिस अगर आप ये देखेंगे तो द आइटम्स आर नाउ इन दिस सॉर्टेड ऑर्डर। अगर हम इसकी एल्गोरिथम अगर हम थोड़ा सा सूडो कोड में देखें, फॉर i इक्वल्स 2 to n वी डू द फॉलोइंग, कि पहले हम क्या करेंगे कि x ऑफ i को नेक्स्ट एलिमेंट में डालेंगे एंड x ऑफ 0 को नेक्स्ट एलिमेंट में, ठीक है जी। सेट करेंगे i to j एंड नेक्स्ट एलिमेंट, while नेक्स्ट एलिमेंट इज लेस देन x j minus 1 we do the following, कि set x of j equal to x of j x minus 1 decrement j by 1 and while एंड पे आप क्या करेंगे, you set x of j equal to next element। तो हम इसको सूडो कोड को दूसरी तरफ भी देख लेते हैं कि आपका अगर एरे है फ्रॉम 1 to n ऑफ n एलिमेंट्स, आउटपुट क्या होगी 1 to n सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। फॉर i फ्रॉम 2 to n आप a ऑफ i को x में डाल देंगे, टेम्परेरी वेरिएबल, j विल बी i minus 1 while j is greater than 0 and a of j is greater than x, मीन्स जो आपने यहाँ पर रखा है आपने सिर्फ अगर वो ग्रेटर देन है तो आपने a of j plus 1 के अंदर j की वैल्यू डाल देनी है एंड j विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 1 और फिर आप ये लूप चलता रहेगा और जब आप बाहर आएंगे तो x की वैल्यू आप j plus 1 में डाल देंगे। इसको समझने की जरूरत है कि ai is inserted in its proper position in the ith iteration in the sorted sub array a of i to a of i minus 1। In the ith step हम क्या करेंगे, the elements from index i minus 1 down to 1 are scanned, each time comparing ai with the element at the correct position। In each iteration an element is shifted 1 position up, हम उसको एक पोजीशन अप भेजेंगे to a higher index and this process of comparison and shifting ये continue रहती है। कब तक continue रहती है कि either an element is less than a of i is found or when all the sorted sequence so far is scanned। और फिर आप क्या करते हैं कि जब ये आपको मिल जाता है then you insert ai in its proper position। इंसर्शन सॉर्ट के एल्गोरिथम में द एरे कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। मैं बार बार आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक वन विल बी दी सॉर्टेड एंड द अदर विल बी अनसॉर्टेड। इनिशियली ऑन द फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू द सॉर्टेड पार्ट। कंसिडर फर्स्ट ऑफ अनसॉर्टेड एलिमेंट्स, it leaves the unsorted part and moves to a proper position of the sorted part so that the sorted part must remain sorted। Many elements have to be shifted to make room for the movement। और यही आप जो स्टेप 2 है इसको आप रिपीट करते जाएंगे until your array is sorted, जैसा कि मैंने आपको डेमोस्ट्रेशन में भी दिखाया था। अगर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देखना चाहें वेरी इजी है, void insertion sort, आप s1 int size ले रहे हैं, ij के temp हम लोकल वेरिएबल्स ले रहे हैं, for i is equal to 1, i less than size, i plus plus, we assigned s1 का i जो है वो हम temp में दे देंगे, i की वैल्यू हम j को देंगे, while j is greater than 0 and condition है temp is less than s of s1 j minus 1,
तो आपका क्या होगा कि एस ऑफ जे इज, अगर वो लेस देन है तो आप उसकी शिफ्टिंग कर देंगे एंड जे विल बी जे माइनस वन, यू कीप ऑन डूइंग दैट। और जब आपकी लूप टर्म या तो इसकी वजह से टर्मिनेट होगी या इसकी वजह से टर्मिनेट होगी, तो वट एवर द टेम्प की जो वैल्यू है वो आप एस ऑफ जे में डाल दें और आप इससे देखेंगे कि वो प्रॉपरली प्लेस हो जाएगा। अब एक इस एग्जाम्पल को देखते हैं कि आपकी, हमने एक एग्जाम्पल ये देखते हैं कि 67, 33, 21, 84, 69, 49, 50, 75। तो इनिशियल हम क्या ये एज्यूम करते हैं कि ये हमारा सॉर्टेड है और द रेस्ट इज अनसॉर्टेड। अब हमने 67 को देखना और 67 को उसकी करेक्ट पोजीशन पे डालना 33 को। तो हम क्या करेंगे कि उसको 33 को टेम्प में ले जाएंगे, 67 को इधर मूव करेंगे और 33 को टेम्प से यहाँ पर ले आएंगे। और ये आपका सॉर्टेड, अनसॉर्टेड है, ये सॉर्टेड है। उसके बाद हम 21 को लेंगे एंड वी विल इंसर्ट इट इन इट्स पोजीशन। तो वो हम यहाँ पर डालना है तो इसको शिफ्टिंग करेंगे, 67 को यहाँ आएगा, फिर 33 आएगा एंड 21 विल गो टू इट्स पोजीशन। फिर हम 84 को इंसर्ट करेंगे तो वो हम इंसर्शन किस तरह वो यहीं पर करना पड़ेगा, तो वो ऑलरेडी है तो वो मूव कर देंगे हम आगे। तो ऐसा कोई मूवमेंट नहीं होगी क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। अब हम 49 को देखेंगे, टू गेट द एलिमेंट 5 टू बी सॉर्टेड। तो हम इसको क्या करेंगे कि हमें ये दो मूवमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि 49 की पोजीशन यहाँ पे बनती है। तो 84 विल बी मूव्ड हेयर, 67 विल बी मूव्ड हेयर एंड 49 विल कम एट इट्स प्लेस। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये 50 को लेंगे और 50 को इंसर्ट करना है। तो इसमें अगर आप ये देखेंगे तो फिर आपको ये 84 और 67 दोनों को मूव करना पड़ेगा, इसकी प्लेस निकलेगी, 50 विल बी प्लेस्ड हेयर। फिर 75 को हमने देखना है तो चूंकि उसको यहाँ पर आना है तो इसी को शिफ्ट करना पड़ेगा एंड वी विल इंसर्ट 75 to get 7 element sorted. To sort an element with k elements, the insertion sort requires k minus 1 passes. अब आपका ये देखें बेसिकली, अगर हम इसमें देखेंगे तो आपका सबसे हम एज्यूम ये कर रहे हैं, ये हम इसको ज़रा डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाह रहे हैं। तो हम एज्यूम करेंगे कि ये वाला सॉर्टेड है, तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से हम टॉप वाले को लेंगे और हम जो अनसॉर्टेड वाला है उसको यहाँ पर ले आएंगे। तो 82 को इंसर्ट करेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर हम 54 को देख लेंगे तो इधर आ जाएगा। फिर 40 को देख लेंगे वो इधर आ जाएगा, फिर 40 आ जाएगा, फिर 33, फिर 15 और इन दी एंड वो सॉर्टेड हो जाएगी। अगर हम इसमें देखें एनिमेशन के जरिए भी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ये उसने सेलेक्ट किया, टेम्परेरी पे जगह पे शिफ्टिंग की 5 और 6 की। अब 3 है, 3 को टेम्परेरी में जगह में भेजा, 6 को शिफ्ट किया, 5 को किया, 3 उसकी जगह पर आ गया। 1 की वहाँ अनसॉर्टेड से उठाया, टेम्परेरी में रखा, 3 शिफ्टिंग की और 1 विल बी प्लेस्ड एट इट्स प्रॉपर प्लेस। 8 को देखा तो शिफ्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पेश आई। 7 को देखा, टेम्परेरी में ले गए, इधर आया, ये अपनी पोजीशन पर आ गया। 2 को लिया, उसको हम उठाएंगे, टेम्परेरी पे लेके जाएंगे, शिफ्टिंग करेंगे बारी बारी, 8 को, 7 को, 6 को, 5 को, 3 को, 2 को उसकी जगह पर लाएंगे। 4 है वो भी शिफ्ट होगा, 8, 7, 6, 5 को शिफ्ट करेंगे और 4 को उसकी जगह पे डाल देंगे। दिस इज हाउ इंसर्शन सॉर्ट वर्क्स। फिर देख लेते हैं, 5 को देखे उसने निकाला और उसकी जगह पे डाला, ये दोनों पोजीशन सॉर्ट होंगे। नेक्स्ट टाइम 3 उसको लिया, 6 और 5 को किया, 3 पे इंसर्ट हो गया। 1 को लिया, अपनी पोजीशन पर लाने के लिए टेम्परेरी पे लेके जाएंगे, शिफ्टिंग करेंगे और 1 को उसकी जगह पे डाल देंगे। 8 है, 7 है, 2 है,
2 को उसकी जगह पे डालेंगे, 4 अपनी जगह पर आएगा। इस तरह आप देखेंगे कि आपका एरे जो है, अब आप ये देखें कि 2 को उसने अपनी जगह पे लेके गए, शिफ्टिंग टेम्परेरी जगह पे ले गए, शिफ्टिंग की, जगह क्रिएट की, 2 को उसकी जगह पे रखा। लास्ट एलिमेंट 4 है, उसको हम टेम्परेरी में ले गए, शिफ्टिंग की, उसकी जगह खाली हो गई और उसको जगह पे कर दी। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं कि let a from 0 to an-1 be the sequence to be sorted at the beginning and after each iteration of the algorithm. The sequence consists of 2 parts. The first part a 0 से लेके a i-1 तक जो है is already sorted. The second part a of I to a of an-1 is still unsorted. तो I इन बेसिकली हमने I को इन 0 से लेके n तक के पोजीशन में डालना है। The worst case occurs when in every step the proper position for the element that is inserted is found at the beginning of the sorted part of the sequence. ये इसका वर्स्ट केस है कि जब भी आपको डालना है तो वो पहली पोजीशन पर ही आना है। इट मीन्स कि आपकी लिस्ट ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड थी, आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं, तो दैट विल बी द वर्स्ट केस। तो उसमें जो शिफ्टिंग सबसे ज्यादा होगी। तो द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स comparisons means the best case occurs when the array is already sorted in the non-decreasing order. In this case, the number of elements comparisons is exactly n-1, as each element a of I means कि 2 से लेके I जो है is greater than or equal to 2 and is less than equals to n is compared with a i-1 only. ये बेस्ट केस हो जाएगा, मगर n comparisons उसमें भी होंगे, n-1 comparisons. The maximum number of element comparison जो आपका worst case है occurs if the array is already sorted in decreasing order and all elements are distinct. In this case the number is summation I from 0 to I to 2 to n i-1. तो इसका जब हम I to 1 से लेके n-1 i-1, तो इसको हम कह सकते हैं n into n-1 over 2. तो दिस इज बिकॉज ईच एलिमेंट a of I जो है वो आपको देखना पड़ेगा compared with each entry in sub array a of 1 to i-1. तो इसके अगर हम फायदे देखें तो insertion sort is relatively simple and it is easy to implement. और इसके अगर नुकसानात देखें तो इट इज इनएफिशिएंट फॉर लार्ज लिस्ट। जितने नंबर ज़्यादा होंगे उसके लिए ये ज़्यादा कंपैरिजंस करने पड़ेंगे। इन द इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम n-1 times the loop will execute for comparisons and interchanging the numbers. The inner while loop iterates maximum of n-1 into n-1 over 2 times to compute the sorting. तो बेस्ट केस हम ये कह सकते हैं occurs when the array A is in sorted order and the outer for loop will iterate for n-1 times. And the inner while loop will not execute because the given array is in a sorted array. तो हम ये कह सकते हैं कि जब आप फिर उस केस में आपका f of n जो है वो बिग ऑर्डर जो बिग O है और ऑर्डर ऑफ n ही होगा। एवरेज केस अगर हम उसका देखें तो on the average case there will be approximately n-1 over 2 comparisons in the inner while loop. Hence उसका जो average case है वो n-1 over 2 plus n-2 over 2 and all that, वो करते करते 2 over 2 plus 1 over 2 इसको हम जब देखेंगे तो n into n-1 over 4 आ जाएगा, which is basically big O to the power of n square. Worst case जो है, the worst case occurs when the array A is in reverse order and the inner while loop must use the maximum number n-1 of comparisons. तो वो आपका वो भी वही आएगा n into n-1 over 2 O power n square.
इसमें हम अगर देखें तो complexity of the insertion sort, best case is big O to the order of n. It occurs when the data is in sorted order after making one pass through the data and making no insertions. Insertion sort exits. Average case में जो है वो order of n square है, since there is a wide variation with the running time. तो worst case में n square है if the numbers were sorted in reverse order. अगर हम comparisons करें bubble and insertion sort का, तो bubble sort is asymptotically equivalent in running time O(n) square to insertion sort in the worst case. But the two algorithms differ greatly in the number of swaps necessary. Swaps में फर्क पड़ता है. And experimental results have also shown that insertion sort performs considerably better than bubble sort even on the random lists. For these reasons, many modern algorithm textbooks they avoid using the bubble sort algorithm in favor of insertion sort. Bubble sort also interacts poorly with modern CPU hardwares. ये भी एक problem है. Why? It requires at least twice as many writes as insertion sort, twice as many cache misses, and asymptotically more इसकी branch mispredictions हैं. And experiments of sorting strings in Java shows a bubble sort to be roughly 5 times slower than the insertion sort, and it is 40% slower than the selection sort. तो performance wise bubble sort is the worst. तो उससे में हालांकि अगर हमने उसका बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस भी देखा है, अभी तक हमने जो है वो 3 का जरा कंपैरिजन किया है और तीनों का जो वर्स्ट केस है वो n स्क्वायर ही आ रहा है. मगर ऐसे हमने जब दूसरी चीज़ों के हवाले से भी कंपैरिजन जब करके देखा है तो बबल सॉर्ट की परफॉर्मेंस सबसे ख़राब है. इंसर्शन फॉर्म जो है और सिलेक्शन दे आर बेटर देन बबल सॉर्ट. तो यहाँ पर हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, तो समरी पर आते हैं. तो आज हमने सबसे पहले जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बबल सॉर्ट की बात की. मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि उसका बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस एनालिसिस हमने किया कि उसमें कितना है. क्योंकि बबल सॉर्ट में वो n-1 पासेस होते हैं, हर एक में वो कंपैरिजंस करता है एडजेसेंट के और फिर साथ साथ स्वैपिंग करता है. उसके बाद हमने देखा सिलेक्शन सॉर्ट को, हमने देखा उसका कॉन्सेप्ट देखा. सिलेक्शन सॉर्ट में हम क्या करते हैं कि वो भी n-1 पासेस ही होते हैं. इन प्लेस सॉर्टिंग मेथड है और उसमें आप क्या करते हैं कि हर पास में यू सेलेक्ट द मिनिमम. अगर आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट करना है तो आप उसको मिनिमम वैल्यू को फाइंड करते हैं, मींस पोजीशन, एंड एट द एंड इन द कंपैरिजंस के बाद आप एक दफ़ा जो है वो उसको पहली पोजीशन के साथ स्वैप कर देते हैं. सेकंड पास में आप सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं टू द एंड ऑफ द एरे और वहाँ से फिर मिनिमम निकालते हैं और आप उसको स्वैप एट द एंड ऑफ द कंपैरिजंस आप स्वैप कर देते हैं. तो इसमें हमने ये देखा था कि -n-1 पासेस होंगे और मैक्सिमम n-1 स्वैप्स होंगे, मगर कंपैरिजंस बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं. तो इस हवाले से उसकी परफॉर्मेंस को इतनी अच्छी नहीं है. लार्ज लिस्ट के लिए वो इतनी बेहतर नहीं है. हमने उसका एल्गोरिथम आपको मैंने थोड़ा सा डेमोस्ट्रेशन के जरिए समझाने की कोशिश की. उसका हमने जो है वो कोड भी देखा. एल्गोरिथम में हमने देखा था कि बेसिकली सिंपल नेस्टेड लूप है जिसके ज़रिए आप एरे को वो कर सकते हैं. इम्प्लीमेंटेशन की भी हमने वो एक प्रोग्राम के मदद से उसको देखा और हमने वो देखा कि वो परफॉर्मेंस उसकी, फिर उसको हमने स्टेप थ्रू भी करके देखा. आपको फिगर्स और एग्जांपल्स की मदद से हमने ये कोशिश की आपको समझाने की कि हाउ सिलेक्शन सॉर्ट वर्क्स. देन वी टॉक अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिलेक्शन सॉर्ट और उसको वो हमने देखा कि वो चाहे बेस्ट हो, वर्स्ट हो, और यह उसमें तमाम में उसकी O टू द ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आ रहा है. और उसके बाद फिर जो दूसरी हमने सॉर्टिंग आज की वो दैट इज़ द इंसर्शन सॉर्ट और उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाने की थी कि आप एज्यूम करते हैं कि एक आपका सॉर्टेड एरे है और एक अनसॉर्टेड है. तो आप अनसॉर्टेड में से जो है वो जो एलिमेंट होता है उसको आप पोजीशन करते हैं
कि वो सॉर्टेड एरे में अपनी पोजीशन पर ही इंसर्ट किया जाए। और इसको हम रिपीटेडली करते हैं, ये भी n-1 पासेस में जो है वो आपको करना पड़ेगा और बाय दी टाइम, और उसमें जब ज़रूरत पड़ती है आप उसके स्वैपिंग कर, इंसर्शन बेसिक इसमें स्वैपिंग नहीं होती, इसमें इंसर्शन होती है, तो इसमें शिफ्टिंग ऑफ एलिमेंट्स की वो होती है, क्योंकि आपने जब उसको इंसर्ट करना होता है वी मूव इट टू अ टेम्परेरी लोकेशन, और फिर हम उसकी शिफ्टिंग करके उसकी जगह बनाते हैं और देन वी इंसर्ट इट इनटू इट्स राइट प्लेस, इसलिए उसको इंसर्शन सॉर्ट कहा जाता है। मुख्तलिफ एग्जांपल्स के ज़रिए मैंने इसका आपको कॉन्सेप्ट समझाया, हमने इसका एल्गोरिथम भी देखा जो कि बड़ा सिंपल था, और इसको फिर हमने कोड भी देखा, कोड भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन देखी, और आपको एग्जांपल्स की मदद से स्टेप थ्रू करके ये समझाने की कोशिश की है कि हाउ द इंसर्शन सॉर्ट वर्क्स। देन हमने इन दी एंड जो है वो कम्प्लेक्सिटी की बात की, और हमने ये देखा कि बेस्ट केस में चूँकि n-1 का उसमें कंपैरिजंस तो करने हैं, उसने n-1 पासेस होते हैं, तो इसकी बेस्ट केस में भी जो है वो कम्प्लेक्सिटी O टू द ऑर्डर ऑफ n है, और एवरेज केस में या वर्स्ट केस में बोथ में ये n स्क्वायर आ रही है सिटल। और फिर हमने इंसर्शन सॉर्ट को बबल सॉर्ट के साथ कंपैरिजन किया, और हमने ये देखा कि बबल सॉर्ट जो है वो ज़्यादा स्लोअर है, इट्स 5 टाइम इट्स स्लोअर देन द इंसर्शन सॉर्ट, और इसके अलावा जो है वो सिलेक्शन सॉर्ट से भी जो है उसकी परफॉर्मेंस 40% स्लोअर है। तो ये आज हमने थोड़ी सी की है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी कम्प्लेक्सिटीज़ को ज़रा बारीकी से और देखेंगे और मज़ीद जो है वो आपको नॉलेज देंगे। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।